کی بات آئی ہے، میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اتحاد اگر پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، ایکتا پیدا کرنا ہے، قرآن نے طریقہ بتا دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، آپس میں تم اختلاف نہ کرنا، تم فرقہ بندی نہ کرنا. تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو. اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے. ابھی آج میں جمعہ میں نے تتریہ میں پڑھایا، راستے میں روڈ میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے. نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے. ہاں شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے. ہاں اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا. ہاں اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن حدیث سے کیجیے. رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں، صاحب صلاۃ الفیہ 1000 رکعت نماز. روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے علماء بیٹھے پوچھو ان سے، معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. سیرت کی کتابیں کہتی ہیں بہت اختلاف ہے. آپ نے تاریخ مقرر کی. میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ اختلاف امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اپنے اختلافات کو دور کرو اور آپ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیزن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَذَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے. مسلمان کی شان تیز ہونی چاہیے. مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو. مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا. مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے. مولانا معراج سرفی کی تقریر آپ نے سنی. آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے. 60 سال والی 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی اس میں سے یہ بھی ہو رہی ہے. جلسہ کیا ہے؟ صاف تہوار ہے. پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں. اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں. اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے، کبھی سائیکل کے ذریعے، کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے. آپ جلسے میں آئے ہیں، جلسہ بڑی پاک جگہ
जगह है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए, और जब औरतें लड़कियां यहाँ आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं, और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे ये सड़कों पर आवारागर्दी करना, ये जलसों के मकसद के खिलाफ है। शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज हमारी मुसलमान लड़कियों की जब शादियां होती हैं, आप देखें शादियों में किस तरीके के ड्रेस पहने जा रहे हैं, साड़ी, लहंगा और ऐसे सूट और ऐसे फ्रॉक जिसमें पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पूरा पेट नजर आ रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही है। और ऐसा कपड़ा भागलपुर की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से, महागामा की मार्केट से, पाकुड़ की मार्केट से भाई अपनी बहन को लाके दे रहा है, शौहर अपनी बीवी को लाके दे रहा है। ऐ मेरे भाई, तू कैसा भाई है? तू अपनी बहन को ऐसा बेगैरती का लिबास पहना रहा है। तू कैसा शौहर है? तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां। अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल के मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें जब तक उस वक्त तक बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मर्द बेगैरत न हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाए तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया हो जाए। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते, तीन लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक-ओ-साफ करेगा। नंबर एक, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर दो, अल-मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर तीन, अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी आलिहिल ख़ुबूर, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता हो, उसको कोई फर्क न पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के लड़कियों में औरतों में खाना चला रहे। क्यों भाई? क्या एक दिन के लिए पर्दा माफ हो गया? एक दिन के लिए बेपर्दगी माफ हो गई? नहीं मेरे भाई, पर्दा शादी के मौके पर भी होना चाहिए, जलसे में भी होना चाहिए, मस्जिदों में भी होना चाहिए। अभी एक साथ ने मुझे व्हाट्सएप किया, मौलाना इस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हमारे बरहेट के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफें, बड़ा एतराज करते हैं। जो मस्जिद में औरतों के जाने पर एतराज करता है वो अपने ईमान की खैर बनाए, इसलिए कि मस्जिद में जाने की इजाजत औरतों को मैंने और आपने नहीं दी, हमारे मौलाना, हमारे नाज़िम इजलास साहब ने नहीं दी है, हमारे उलमाए किराम ने नहीं दी है। मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत हमारे नबी ने दी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह अनिल मसाजिद, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। मगर हाँ, मस्जिद में सेपरेट इंतजाम औरतों का होना चाहिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनके रास्ते अलग हो और पर्दे में आए वो। और खास तौर से मैं अभी आज मैंने तेतरिया में जुमा पढ़ाया, वहां भी मैंने ये बात कही कि हमारे इस अंसारी बिरादरी के जो मस्जिदें हैं पूरे इस प्रखंड में, पूरे इस इलाके में, साहिबगंज से लेकर गुड्डा तक मैं एक चीज देखता हूँ, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम है। बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह, 2 मंजिला मस्जिद है, औरतों का इंतजाम है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर आप ये समझते हैं कि बरहेट के जलसे में औरतों का इंतजाम हमने करा दिया और औरतों ने दीन सीख लिया, हमने नीमा में और हमने लालमतिया में और हमने फला फला इलाकों में जलसे कर दिए और औरतों का इंतजाम कर दिया और वहां औरतें आ गई और दीन सीख लिया, गलत सोच है आपकी। एक रात के जलसे से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है, आप औरतों का इंतजाम रखें, सेपरेट इंतजाम, अलग इंतजाम। और वहां अपने घर की औरतों को जुमा में लेके जाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, साल के 52 जुमा के खुतबे अगर आपके घर की माओ बहनों ने और बेटियों ने उसमें शिरकत की और 52 आधा घंटे के जुमा के खुतबे उन्होंने सुने, दीन की बहुत सारी नॉलेज लेकर के वो घर जाएंगी और इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से वो बचने लगेंगे। आज आपको हैरत होगी कितनी औरतों को नमाज का सही तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, हैज और निफास के जरूरी मसाइल नहीं मालूम। जो मदरसे में पढ़ी लड़की है, आलिमा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम औरतों की बात कर रहा हूं। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। नबी अकरम के दौर में अंसार की औरतें आती थी और बड़े प्राइवेट मसाइल भी अल्लाह के नबी से पूछ लेती थी। अम्मा आयशा ने एक मरतबा बड़ी हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें तो बड़ी बेहतरीन औरतें हैं, ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं है।
अपनी औरतों को दीन सिखाओ, ऐसा दीनदार बनाओ अपनी बेटियों को कि तुमको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, आखिरी टाइम में, इंतकाल का टाइम में उनकी बेटी हजरत आयशा उनसे मिलने के लिए आती है बाप का आखिरी टाइम में, और अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल करते हैं, ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? अबू बकर सिद्दीक कौन है? नबी के यार गार है, नबी के सबसे खास सहाबी है, मगर कफन कितना था अल्लाह के नबी का? ये तो जाहिर है कि अल्लाह के नबी के घर वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूछा, बेटी अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? हजरत आयशा ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 कपड़े थे, 3 सूती चादरें थी, प्लेन चादरें। कहा, है मेरी बेटी, जब तुम मुझे कफनाना, एक मेरा कपड़ा है जो बीमारी के दिनों में मैं पहना करता था, उस कपड़े में मुझे कफनाना, और 2 कपड़े और ले लेना। अम्मा आयशा ने फरमाया, अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है, आपको पुराने कपड़े में हम नहीं कफनाएंगे, आपके नए कपड़े का इंतजाम करेंगे, नई कफन की चादरें लाएंगे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहब्बु बिल जदीद, ऐ मेरी बेटी, जो भी कपड़ा तुम मुझे पहनाएगी उसे तो मिट्टी में मिल जाना है, उसे तो गल जाना है, उसे तो खत्म हो जाना है। ऐ मेरी बेटी, नया कपड़ा किसी जिंदा इंसान को पहना देना, मुर्दे को नया कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। ये सहाबा को मरने के टाइम भी ये फिक्र रहती थी कि मेरा कफन दफन सुन्नत के मुताबिक। आज कितने मुसलमान हैं, मरने के बाद उनके घर में तीजा हो रहा है, 10वां हो रहा है, बरसी हो रही है, 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, कितने काम बिदअत के हो रहे हैं, शरीयत के खिलाफ हो रहे हैं। खबरदार, अगर आपको यह लगता है आपके मरने के बाद आपके घर में कोई बिदअत होगी, आप वसीयत करके जाइए, अपने घर वालों से कह के जाइए, अपने बेटों से कह के जाइए, मेरे जनाजे की नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ाई जाए, मुझे दफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, मुझे दफनाया जाए सुन्नत के मुताबिक, आप वसीयत करके जाइए। तो आज फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितने ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, बातिरू बिला माली फितनन, ऐसा दौर आने वाला है, फितनों का ऐसा दौर आने वाला है, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। उस वक्त के आने के पहले तुम नेकी के कामों में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो मेरे भाई। अब इंतजार में मत रहो कि मौलाना मुर्तजा साहब तकरीर करेंगे नमाज पर, तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब जब नमाज पर बोलेंगे तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अब इंतजार मत करो मेरे भाई, कब किसकी मौत का कौन सा बहाना आ जाए, कब किसकी मौत का परवाना आ जाए, कौन सी बीमारी कब किसको आ जाए, हम नहीं बता सकते। आज तो वो दौर हो गया मेरे भाई। मेरे उस्ताद मोहतरम बनारस के जामिया सल्फिया की हमारे उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह तैयब साहब, 20 फरवरी को मैसेज आया कि मौलाना की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करें। 21 को मैसेज आया बहुत हालत सीरियस है, दुआ करें। 22 को मैसेज आया इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आज बीमारी की खबर आती है, सुबह को शाम को इंतकाल की खबर आ जाती है। इंतजार मत करो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है और आप सेहतमंद हैं, इंतजार मत करो 7 साल के हो जाएंगे तब हज कर लेना, जाओ जल्दी से हज का फॉर्म भरो, हज कर लो, उम्रा का फॉर्म फॉर्मेलिटी पूरी करो, उम्रा कर। नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो। और माफ करना, अगर अल्लाह ने आपको बिजनेसमैन बनाया है, दौलत वाला बनाया है, 4 पैसे सुकून से आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में नमाज का टाइम नहीं है, तो कभी गौर करना मेरी बात पर। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो नमाजों को छोड़ के, कहीं ये माल ये दौलत तुम्हारे लिए फितना न बन जाए, ये फितना बन जाएगा, ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा मेरे भाई। और जब माल अजाब बन जाएगा तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इंसान इतना लालची हो जाता है माल कमाने के चक्कर में, लौकान इब्न आदम वादिया मिन ज़हब सालिसन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाए तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा मेरे भाई। माल आज फितना बन चुका है। आज हमारा नौजवान लॉटरी के जरिए अमीर बनना चाहता है, जुआ के जरिए रातों रात अमीर बनना चाहता है, हमारा नौजवान सट्टाबाजी में हिस्सा ले रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे फालतू किस्म के जुआ वाले ऐप आ रहे हैं, उन ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहा है। अल्लाह के वास्ते हलाल तरीके से पैसा कमाओ, ये हराम तरीके छोड़ दो। अगर
اگر ان کے ذریعے تم لکھپتی بن بھی گئے, کروڑپتی بن بھی گئے, وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے. ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی. میرے بھائی حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. اللہ کے نبی فرماتے یاتی الناس زمان لا یبال المرء من اين اخذ المال, وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا.